Morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, you have already been informed that the notebook work checking schedule is starting from 24th of November. So what you have to do? You have to complete your pending work if there is any, and you have to send all the main subjects notebooks like English, Hindi, Maths, EVS, English grammar notebook and the book of computer in a proper labeled bag with your name and section clearly mentioned on it to the school on 24th November. It is compulsory for all to send the notebooks as it carries the weightage of 20 marks. ये सबके लिए कंपल्सरी है, इसके 20 मार्क्स है नोटबुक का जो आपका मेंटेनेंस है एंड आपका कंप्लीशन ऑफ वर्क है उसका कंप्लीटली जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है. So I have sent the PDFs of all the notebook work that is done after PT2 exams for the main subjects like English grammar, English reader and EVS notebook work. मैंने वो PDF send किया है, so you can cross check from the PDF कि if their work is pending. So you have to complete it and you have to send all your notebooks on 24th of November to the school. So today we are going to start our English grammar class with the discussion of the password. Our password for today is traffic. It is a noun. ये noun है, संज्ञा है. हिंदी में इसका अर्थ है सड़क पर चलने वाला, सड़क पर होने वाला यातायात. In English, the meaning of this word is all the vehicles like cars, buses, trucks, auto rickshaw, cycles that are on the road. So now about using this word to frame sentences. There was a lot of traffic in this morning. So another sentence can be to run the traffic smoothly. We should follow some signs and symbols. हमें कुछ signs और symbols follow करने हैं. Here are a few examples of these roads, signs or symbols. This indicates no entry. It means you cannot go ahead. आप आगे नहीं जा सकते हैं. It means no parking. The meaning of this thing is that you cannot park your vehicle here. So ऐसे road signs and symbols हैं that we should know about them. उनके बारे में जानना है and उनके बारे में उन्हें follow भी करना है. So that हम अपने आप को सेव कर सकें और किसी और को भी harm ना पहुंचाएं. So what we are going to do today in our English class, children, as you know that we are discussing our topic verbs, that is chapter number 10, verbs. In today's class, we will have a quick recap of yesterday's discussion and after that we will be doing bookwork exercises that are on page 64 and 65. So let us start. So children, we are having a recap of the definition of our topic verbs. So what are verbs? Verbs क्या है? Words that tell us what a person, animal or thing does are called verbs. ऐसे words जो हमें बताते हैं कि एक person, कोई एनिमल या कोई चीज़ क्या काम कर रहे हैं. मीन्स वो जो भी काम कर रहे हैं, वो जो भी एक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में जो वर्ड हमें इन्फॉर्म करता है वो क्या होता है? वर्ब्स. सो वर्ब्स शो एक्शन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. वर्ब्स हमें एक्शन शो करती हैं, सो उन्हें डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम वर्ड्स लाइक टॉक, स्लीप, शाउट, ईट, टीच, राइट, लाफ. ये क्या है? ये हमें एक्शन शो कर रहे हैं. सो इन वर्ड्स को हम जब रीड करते हैं, व्हेन वी लुक एट दीज वर्ड्स वी क्लियरली नो कि ये कुछ काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है हम इन वर्ड्स के थ्रू जान सकते हैं. सो फॉर मोर एग्जाम्पल let us look at the another poster. Children, I have written some examples here. This will help us to recall the topic. She dances. वह डांस करती है. She is a pronoun. She pronoun है, as you know. For female noun के लिए ये आया गया है. And dances मतलब वह डांस करती है. At this time वो डांस करती है. So ये present tense को भी शो कर रहा है कि अभी काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है? डांस करना. सो डांसेस क्या है? वो है वर्ब है, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड जो कि वह कर रही है. नेक्स्ट, अ फिश स्विम्स. एक फिश है वो तैरती है. तो फिश का एक्शन क्या है? स्विम करना. सो इससे भी शो हो रहा है प्रेजेंट टाइम में कि एक फिश तैरती है. फिश का एक्शन क्या है? स्विम करना.
सेम एज विथ लॉइन, लॉइन के साथ क्या एक्शन है, लॉइन रोर्स, लॉइन का जो साउंड है वो जो आवाज़ निकालता है उसे रोरिंग कहते हैं, रोर करना कहते हैं। सो जो लॉइन का एक्शन यहाँ जो हमें बता रहा है इस सेंटेंस में, दैट इज़ रोर्स, कि एक लॉइन है और वो क्या कर रहा है, रोर कर रहा है। द क्लाउन जम्प्स, क्लाउन का एक्शन क्या यहाँ शो किया गया है, दैट द क्लाउन जम्प्स, वो जंप कर रहा है, जंप करता है। सो इससे भी हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, अभी इस समय में काम हो रहा है, और क्लाउन का एक्शन क्या है, जंप करना। क्लाउन मेक अस लाफ ऑल्सो, वो हमें हंसाता भी है। सो उस समय उसका एक्शन क्या होता है कि हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है वो एक्शन डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या एक्शन है, जम्प्स। नाउ एंड द नेक्स्ट इज आई राइट विद द पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखती हूँ या लिखता हूँ। सो मेरा एक्शन क्या है, राइट करना, मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ या लिखती हूँ। सो उसके लिए मैंने किसकी हेल्प ली है, पेंसिल की। बट यहाँ मेरा एक्शन क्या है, जो वर्ड शो कर रहा है कि मेरा एक्शन क्या है, दैट इज राइट। काउस ईट ग्रास, काउस का क्या एक्शन शो हो रहा है कि वो घास खा रही हैं। काउस क्या है, प्लूरल है, काउस एस लगा हुआ है, एंड देन जब हम उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ईट करेंगे। काउस हैं वो गायें हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, वो घास खाती हैं। सो बाय नाउ वी क्लियरली नो कि एक्शन वर्ड्स हैं या डूइंग वर्ड्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब्स। So children, in yesterday's class we had done two exercises regarding our topic verbs. Now in today's class also we will be doing the next two exercises, and then our chapter will be completed. Exercise B and exercise C we are going to do, and then D exercises is being omitted. Children, open your English grammar book, page number 64. We are going to do exercise B first. So children, I am sure that you have opened your book. First of all, write all the details like classwork and today's date. Today is 19th of November. We are going to do exercise B now. Exercise B says, match the columns to make sentences. One has been done for you. It means we have been given two columns, as you can see here clearly. We have to match these columns एंड टू फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस तरह से हमें मैच करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। सो हम ऐसे ही मैच नहीं करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू रीड ऑल द वर्ड्स दैट आर रिटन इन बोथ कॉलम्स, हमें प्रॉपरली रीड करना होगा। देन वी कैन जज कि हमें किस कॉलम में किस सेंटेंस को किस से मैच करना है। सो वी हैव बीन गिवन टू कॉलम्स हेयर। वी आर गोइंग टू रीड द कॉलम ए फर्स्ट। नंबर 1, the hawker, the monkeys, the gardener, the pigeons, the students, the cat, the stars. So यहाँ पर क्या है, वो कॉलम है, एक कॉलम ए, जिसमें जो काम कर रहे हैं उनके बारे में ही मेंशन किया गया है कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं और उनका एक्शन क्या है। लेट अस सी, हम देखते हैं। वी आर गोइंग टू रीड द वर्ड्स रिटन इन द कॉलम बी। ए, जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री, ट्री एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करता है। कू ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस एवरी मॉर्निंग, ये साउंड है किसी बर्ड की जो कि मेरे घर की छत पर हर सुबह वो आती है। वैग्स इट्स टेल ऑन सीइंग इट्स मास्टर, अपनी पूंछ हिलाता है अपने मालिक को देखकर। चेजेस द माउस, माउस को चेस करती है, मतलब माउस का पीछा करती है। ट्विंकल इन द स्काई, स्काई में चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं। सेल्स ड्राइड फ्रूट्स, कौन है वो जो कि सूखे फ्रूट्स बेचता है, मीन्स ड्राइड फ्रूट्स हम कहते हैं जिसे, वो सेल करता है। सिट एट देयर डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठते हैं। वाटर्स द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देता है। सो वी हैव रीड ऑल द सेंटेंसेस दैट आर रिटन इन बोथ द कॉलम्स। सो वी आर गोइंग टू ट्राई एट फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर अस, हमारे लिए किया गया है। द डॉग वैग्स इट्स टेल ऑन सीइंग इट्स मास्टर, कि जो डॉग है वो अपने मालिक को देखकर अपनी पूंछ हिलाता है। वैग्स मीन्स हिलाना। द हॉकर क्या है, जो गली में आता है, सामान बेचता है। शॉप पे नहीं होता है लेकिन वो गली में इधर से उधर मूव करके सामान बेचता है। द हॉकर सेल्स ड्राइड फ्रूट्स, हॉकर है वो सूखे हुए फल बेचता है। द मंकीज जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री,
मंकीज़ हैं वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करते हैं, वो उनका एक्शन क्या है, वो जंप करना। हॉकर का एक्शन क्या था कि वो सेल करता है ड्राइड फ्रूट्स, सेल्स मतलब बेचता है। और डॉग का एक्शन क्या करना था, अपनी टेल को वैग करना। सो ये एक्शन शो हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग का क्या एक्शन है, किसी एनिमल का क्या एक्शन है, उसी अकॉर्डिंग वी हैव टू मैच दीज टू कॉलम्स। सो द गार्डनर क्या करता है, गार्डन की देखभाल करता है, एज वी ऑल नो। सो द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, गार्डनर का एक्शन क्या है, ही वाटर्स द प्लांट्स, वो प्लांट्स को पानी देता है। द पिजन क्या है, कबूतर, बर्ड है। द पिजन कू ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस एवरी मॉर्निंग, मेरे घर की छत पर हर सुबह पिजन कू करता है। जो पिजन का साउंड है दैट इज कॉल्ड कू, COO कू, ये पिजन का साउंड है। स्पैरोज क्या करती हैं, चर्प करती हैं, अलग अलग बर्ड्स के, एनिमल्स की अलग अलग साउंड होती हैं। सो द पिजन, जो पिजन है उसकी साउंड क्या है, कू। द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनका एक्शन क्या है, सिट एट देयर डेस्क, वो अपनी डेस्क पर बैठे हैं। एट दिस टाइम यू आर ऑल्सो सिटिंग समवेयर, आप भी कहीं बैठे हैं, सोफा पर, काउच पर या चेयर पर बैठे हैं। और आई एम ऑल्सो सिटिंग लाइक दैट, मैं भी इसी तरह से बैठी हूँ। सो हमारा एक्शन क्या है, वी आर डूइंग मल्टीपल एक्शंस, हम बैठे भी हैं। और एक्शन क्या है, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा एक्शन है। यू आर लिसनिंग, ये आपका एक्शन है, आप बैठे भी हैं, साथ में यू आर वॉचिंग योर मोबाइल या अपना लैपटॉप ये देख रहे हैं, और साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपका एक्शन है। आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी आपका एक्शन है। द कैट चेजेस द माउस, जो कैट है वो चूहे का पीछा करती है। जो कैट का एक्शन क्या है यहाँ पर, कि वो माउस को चेज कर रही है। चेज मतलब पीछे, उसके पीछे जाना, पीछा करना। द स्टार्स का क्या एक्शन है, स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल इन द स्काई, वो स्काई में ट्विंकल करते हैं। सो स्टार्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग है, बट उनका एक्शन बताया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, स्काई में ट्विंकल कर रहे हैं, वो ट्विंकल करते हैं। So that was about this matching exercise. Now we will be doing exercise C. Now this is exercise C. It says choose the correct word. हमें correct word choose करके, we have been given options, हमें उसमें से correct word choose करना है। ये जो सारे MCQs में जो options दिए गए हैं, ये क्या हैं, ये सारे action word हैं, ये verbs हैं। But we have to सॉर्ट आउट द करेक्ट वर्ब, हमें करेक्ट वर्ब्स छांटनी है इनमें से और उसे फिलअप में फिल करना है। सो एज यू नो कि कोई भी वर्ब नहीं हम ऐसे ही अप्लाई कर सकते, हमें करेक्टली वर्ब को अप्लाई करना है। जो एक्शन हो रहा है उसी को हमें मेंशन करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, माई ब्रदर डैश द गिटार द वायलिन एंड द पियानो, जो मेरा भाई है वो क्या करता है, गिटार, वायलिन और पियानो बजाता है। सो ये सेंटेंस से हमें शो हो रहा है, वी हैव बीन गिवन 3 वर्ब्स, हमें 3 वर्ब्स दी गई हैं, हमें करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है जो हम यहाँ पर फिल कर सकें। सो माई ब्रदर प्लेज द गिटार, माई ब्रदर सिंग्स द गिटार, माई ब्रदर म्यूजिक द गिटार। सो ये सारे क्या हैं, हमें जो करेक्ट वर्ब चूज़ करना है। जब हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं चिल्ड्रन, तो हम उसके लिए हम प्ले वर्ब यूज़ करते हैं। सो माई ब्रदर प्लेज द गिटार द वायलिन एंड द पियानो, मेरा भाई गिटार, वायलिन एंड पियानो बजाता है। जो बजाना है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेज। सिंग का होता है गाना, म्यूज़िक क्या होता है, जो कि संगीत होता है। सो my brother plays the guitar, the violin and the piano. This word is correct. We have to fill this word here. Next, at number 2, we dash our teeth every morning. सुबह हम अपने टीथ पर क्या करते हैं? ऑप्शन, ब्रश करते हैं, वॉश करते हैं या रब करते हैं। सो हम अपने सुबह हम अपने टीथ को क्या करते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। वी हैव टू चूज अमंग दीज ऑप्शंस कि करेक्ट वर्ब क्या होगी। ब्रश करना, रगड़ना, वॉश करना, धोना, रब करना, रगड़ना, ब्रश करना, मंजन करना जिसे हम कहते हैं। सो वी ब्रश अवर टीथ एवरी मॉर्निंग, हम अपने टीथ को
ब्रश करते हैं। ये सारे वर्ब्स हैं बट हमें करेक्ट वर्ब चूज करनी है। सो वी ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट एट नंबर 3, आई डैश माई इंग्लिश बुक एवरी डे। मैं मेरी इंग्लिश की किताब एवरी डे क्या करती हूँ या क्या करता हूँ? थ्रो करती हूँ, टेयर करती हूँ या रीड करती हूँ। थ्रो मतलब फेंकना, टेयर मतलब फाड़ देना उसको, और रीड मतलब पढ़ना। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ? आई टेल यू, आई रीड माई इंग्लिश बुक एवरी डे। सो ये क्या है? सब है तो ये डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स, बट वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड। सो हम अपनी इंग्लिश बुक को क्या करते हैं? वी जो कि हम रीड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है समवन इज टेलिंग अस दैट आई रीड माई इंग्लिश बुक एवरी डे। नेक्स्ट एट नंबर 4, मीरा डैश इन एन ऑफिस फॉर 8 hours एवरी डे। मीना एक ऑफिस में 8 घंटे तक क्या करती है? वर्क करती है, प्ले करती है या डांस करती है। सो ऑफिस में एज द सेंटेंस हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑफिस में जो काम कर रही है 8 hours तक, वो क्या काम हो सकता है? वो वर्क करना हो सकता है, खेलना हो सकता है या डांस करना हो सकता है। ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर एक्शन वर्ड्स, लेकिन वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। सो मीरा वर्क करती है एक ऑफिस में 8 घंटे तक हर रोज़। सो उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 hours हैं और वो 8 घंटे तक काम करती है। और वो क्या एक्शन वर्ड हम चूज़ किया है? हमने वर्क्स। मीना वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर 8 hours एवरी डे। नेक्स्ट एट नंबर 5, आई कैन डैश बोथ चेस एंड कैरम। ये गेम्स के नाम है, एज यू नो वेरी वेल। चेस और कैरम ये इंडोर गेम्स हैं। So options are given to us like read, play, jump. I can read both chess and carom. I can play both chess and carom. or I can jump both chess and carom. But which is suitable? क्या suitable है children? So I can play. Game हम खेलते हैं और musical instrument भी हम play करते हैं. So I can play both chess and carom. Next at number 6, we should dash trees to save the earth. हमें ट्रीज को क्या करना है? अर्थ को सेव करने के लिए। सो वी ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू टू सेव अवर अर्थ। ट्रीज को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। टेयर फाड़ देने चाहिए, कट कर देने चाहिए, एंड प्लांट कर देने चाहिए। सो प्लांट एक तो नाउन होता है, एक प्लांट डूइंग वर्ड जैसे आता है, जस्ट लाइक वाटर, ही वाटर्स द प्लांट, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह से हम बोलते हैं। वाटर क्या है? वैसे नाउन है। उसी की तरह प्लांट इज़ अ नाउन वर्ड, लेकिन यहाँ पर प्लांट एक एक्शन वर्ड के जैसे है। प्लांट करना, हम जैसे बोलते हैं कि हमें ट्रीज़ को लगाना है, ही इज़ प्लांटिंग द सीड्स, ही इज़ प्लांटिंग अ ट्री, इस तरह से हम बोलते हैं। सो वी शुड प्लांट ट्रीज टू सेव द अर्थ। हमें अर्थ को सेव करने के लिए ट्रीज़ को क्या करना है? टेयर नहीं करना है। टेयर हम पेज को करते हैं। कट भी नहीं करना है, हमें प्लांट करना है। वी शुड प्लांट ट्रीज टू सेव द अर्थ। दिस इज पेज नंबर 65. वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज सी, दैट वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड। हमें वर्ब्स दी गई हैं। वी हैव बीन गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स एज ऑप्शन, लेकिन हमें वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब। हमें करेक्ट एक्शन वर्ड या करेक्ट डूइंग वर्ड चूज करना है। एट नंबर 7, शी डैश कुकीज़ एंड केक्स। वो केक्स और कुकीज़ को क्या करती है? द ऑप्शंस आर कुक्स, बेक्स एंड फ्राइज। वी ऑल नो कि जो प्रोसेस है कुकिंग के वो डिफरेंट होते हैं। दे आर इधर बॉइलिंग हो सकते हैं, वो कुकिंग होते हैं, रोस्टिंग हो सकते हैं, डीप फ्राइंग है, फ्राइंग है, बेकिंग है। ये अलग अलग प्रोसेस है फॉर कुकिंग। तो केक एंड कुकीज़ या बिस्किट्स हैं या ब्रेड है, उसको क्या किया जाता है? The correct word is bakes. Among these three, she वो कुक नहीं करती है कुकीज़ और केक्स को, वो बेक करती है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेम दिए गए हैं, ये बेक होते हैं। सो शी बेक्स कुकीज़ एंड केक्स। नेक्स्ट एट नंबर 8, आई डैश टेलीविज़न इन द इवनिंग। मैं शाम को टेलीविज़न को क्या करता हूँ या क्या करती हूँ? ऑप्शंस आर ईट खाना, वॉच देखना, स्लीप सोना। तो टीवी को क्या किया जा सकता है चिल्ड्रन? यू विल एबल टू आंसर क्लियरली। आप खुद ही बता देंगे कि टीवी को वॉच किया जाता है। वॉच मूवीज़, वॉच टेलीविज़न, इन सब चीज़ों को हम उनके लिए क्या प्रॉपर एक्शन वर्ड यूज़ करते हैं? वॉच।
सो आई वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, मैं शाम को टेलीविज़न देखता हूँ या देखती हूँ. नेक्स्ट एट नंबर 9, आई डैश पोएम्स फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए पोएम्स क्या, ये हमें बताना है. वी हैव बीन गिवन ऑप्शंस जो कि एक्शन वर्ड्स हैं लाइक लुक, टॉक, राइट. सो लुक मतलब देखना, टॉक मीन्स बातें करना और राइट मीन्स लिखना. सो पोएम्स को क्या किया जाएगा? लुक पोएम्स नो, टॉक पोएम्स नो, राइट पोएम्स. सो आई राइट पोएम्स फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए पोएम्स लिखता हूँ या लिखती हूँ. एट नंबर 10, द शिप्स डैश ऑन द सी, शिप्स क्या होती हैं? जो सी में क्या करती हैं? इसके लिए एक्शन वर्ड वी हैव बीन गिवन लाइक सेल, स्विम, रन. जो शिप्स का एक्शन क्या हो सकता है? करेक्ट, सेल करना, मतलब किसी सरफेस पर जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर सेल करना. स्विम मतलब तैरना. सो शिप्स क्या करते हैं? सेल करती हैं, स्विम करती हैं, या रन मीन्स भागना. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? सेल. द शिप्स सेल ऑन द सी, सी पर वो सेल करती हैं. Now we have exercise D also, but we will be not be doing this exercise. हम इसे omit करेंगे. So we have clearly A, B, C 3 exercises for this chapter that we have done so far. अभी हमने वो कर ली हैं. So children, that's all for our English grammar class today. In our next English class on Monday, I will be sending you or we will be revising this टॉपिक वर्ब्स अगेन थ्रू अ वर्कशीट. वर्कशीट के थ्रू हम इसे रिवाइज करेंगे और प्रॉपर रिवीजन विल बी देयर इफ़ वी आर डूइंग द रिवीजन ऑन द वर्कशीट, ताकि हम पुराना सब जो है हमने डिस्कस किया है वो हम रिकॉल कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन. बाय बाय, टेक केयर.